दिहाड़ी कैंसिल कर देने कल वाली तो देगा ना कल तो सही काम करके गए यार कल सही करके गए। अच्छा हाँ भी खत्म हो गया सवाल आपका भाई लो जी कल वाली दिहाड़ी के पैसे आ गए जी। अच्छा फिर कहने भाई आप बात करना चाहते हैं या मैं जवाब दूँ आप जवाब दीजिए, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ आमिर भाई। अच्छा ठीक है अच्छा दजाल दे बारे नॉर्मल मैन साहब दजाल दे बारे जो कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीसां दे विच गल आई है ना ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਮੰਨਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਨੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ दजाल एक शख्सियत है एक फ़र्द है एक इंसान है या इंसान नुमा कह लो कोई मखलूक है लेकिन एक शख्सियत है एक परसनैलिटी है कौम नूं किसी नूं दजाल कहना या पादरियां नूं किते दजाल कहा है कदे इकबालमंद कौमां नूं दजाल कहा है कदे किसी नूं दजाल कदे मौलवियां नूं दजाल कहा है ये सब मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ लिखा है असीं इन्हां नूं सब नूं बातल तवीला और बातल गल्लां समझने ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 100% साढ़े ते वाजे नहीं है जिन्नी खबर साढ़े तक पहुंची है नबी अलैहिस्सलाम दी जो कोई उन्होंने बयान फरमाया है सानू उहदे बारे कोई किसी किस्म का बहाम हो सकता है ख्याल दिल च आ सकता है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस तरह की बातल तवील करके उन्होंने नवा कोई दजाल वो शक्ल बना दी जाए ये बिल्कुल गलत है एक तमीमदारी की रिवायत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया साहबा नूं एक दिन पहले आपने गल की तो फिर वो मीमदारी ने आके वाक़या सुनाया कि असीं इस तरह समंदरी सफ़र पर गए सां ते उत्थे असीं जंगलात च उतर गए जहाज़ जिहड़ा सी उहने सानूं सुट दित्ता किसी ऐसे जजीरे च आम तौर पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਮਸਕੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਰੂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਰੂਜ ਦਜਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਜਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਜਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਸਕਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਮਸਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਵੀਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਲ ਤਾਵੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਦਲਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ मुस्लिम बिन अहमद ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਿੱਤੀ 26:35 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਦਾਊਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ 43:26 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਫਲਾਨ ਹੈ ਮੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਦਜਾਲ ਅਲ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਜਾਲ ਵਾਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਖੋਤੇ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਜਾਲ ਦਾ ਗਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਰੂਈ ਦੇ ਗਾਲੇ, ਰੂਈ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਾਰ ਉੱਡਣਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਜਾਲ ਦਾ ਗਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਾੜ ਉੱਡਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉੱਡ ਪਵਣ ਹੈ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਦੂਰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਹ ਰੂਈ ਦੇ ਗਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣਗੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਵੀ। ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਹਿਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਰਾ ਅਕਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਕ ਆਦਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੁਲਹਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 24 ਸਾਲ। 24 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਰੈੱਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 24-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ, ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਐਸੀ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਉੜਾ ਹੂੰ ਉਤਨਾ ਫਲਕ ਵੀ ਹੁਆ ਬੁਲੰਦ, कौन इस कफस में मुझको गिरफ्तार कर गया। रब दा बनाया, किड्डी वड्डी कायनात रब दी बनाई, ये सारा बंदे दी अकल च आ जांदा है। कोई चीज भी इंसान दी अकल च नहीं आंदी है। खारक आदत जिन्नियां गल्लां ने, अगर उस सामने चीज़ों ते यकीन करदा है, कुछ नहीं आंदा दजाल। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। बात भी नहीं।
ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? जी आवाज मेरी सही आ रही है? कोई सिग्नल की प्रॉब्लम सही आ रही है। मेरे वाले पासे प्रॉब्लम है तो दूजे पासे भी कुछ आंदा होगा सिग्नल भी सही। कल गायब ही रहे हो सारा दिन? हाँ जी, कल मसरूफियत थी, वो मेरे बच्चे आए ने थे ते इस वजह नाल। आज कोई पीर असकानी भाई कह रहे सी कि कोई 17वीं जिल्द का 435 सफ़ा है तो वो पढ़ना है तो समझना है। मैं रुकना तो फिर पढ़ने हैं फिलहाल ते दौड़ो दौड़े। ठीक है, तुसी वेले ही हो तो तुसी खोल लो। किताब का की नाम है? 17वीं जिल्द पता नहीं किताब हो सकता तोहफा गोल्डिया भैया PSC की होगी। ठीक। जिल्द नंबर 17 है ते सफ़ा 435। मैं आया बस एक सेकंड। ਜ਼ੈ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲੰਗ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
جی طارق خان صاحب ہو گیا میں ویلا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سارے میں آ گئے تھا. کوئی بات نہیں. میں سن رہا تھا دودھ سے. آپ کے پاس ہے وہ روحانی ڈیزائن کی 17ویں جلد 435 صفحہ کیا لکھا ہوگا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ بتا دیں اگر آپ کھول سکتے ہیں. نہیں آپ کے میرے پاس بھی- میں تو آؤٹ آف اسٹیشن ہوں. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے. ان کے پاس ہوگی نا طاہر چوہان صاحب کے پاس ہوگی. ہوں. یہ اربعین نمبر 4 ہے. یہ ہاں 435. یہی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو حاشیہ میں تو یہ ہے کہ وہ میری تعلیم میں امر بھی ہے نہیں بھی، یہ والا آپ کا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے یہی ہو لیکن مجھے بتایا نہیں انہوں نے. اچھا یہ شروع ہوتا ہے ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ قول کی تصدیق تبھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے، ورنہ یہ قول منکرین پہ کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 برس تک ہلاک نہ ہونا. آپ ذرا میوٹ کریں گے. ایک ہاں ورنہ اور نہ ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے یعنی من جملہ دلائل صدق نبوت کے یہ بھی ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق تبھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے، ورنہ یہ قول منکرین پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر افتراء کرنا ایسا گناہ نہیں ہے جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے گا، کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا اور سنت اللہ اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو اس دنیا میں سزا دینا چاہیے تو اس کے لیے نظیریں ہونی چاہیے تھی، اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے 23 برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افتراء کی اور ہلاک نہ ہوئے. تو اب بتلاؤ کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے. خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی. ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی. اور نیچے حاشیہ میں لکھا ہے کہ چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا، جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبَحَيْنَا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ تو اس سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا ہے. جس کی آنکھیں ہوں دیکھے، جس کے کانوں سنیں. جی یہ تھا وہ. یہ میں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں. اچھا اس میں ایک اور حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ پھر اس کا نہیں کوئی بھی واٹس جو ہے اپ نا کر امر لیں. ہے ہاں جی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی قرآن کی آیت انہوں نے استعمال کی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حکم ہوا ہے مومنین کے لیے مرزا صاحب کے ذریعے کہ اپنے آنکھوں کو نیچیر کرو. اسی میں کہیں حوالہ دیا ہے انہوں نے، یعنی ان کو بھی امر ہے.
मेरी आवाज़ आई या नहीं? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। म्यूट इसलिए कर लेते हैं सारे कि फिर वो आवाज़ का ना दूसरी तरफ से शोर आता है। मैंने म्यूट किया लेकिन आपकी बात सुन ली मैंने। असल में ये भी एक मुअम्मा ही है ये जो 23 साल वाला, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो इस तरह की कोई बात नहीं फरमाई कि जो बंदा 23 साल तक वही का या इल्हाम का दावा करे वो सच्चा है। ना कुरान ने ये तो एक फहम है। नहीं आमिर भाई, कुरान में तो जो झूठों के लिए जो वाइद हुई है ना, लानतुल्लाह अल काज़िबीन है, और दूसरी आयत कुरान में सूरह ज़ुख़रुफ़ में मेरा व यौमल क़ियामत तरल लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, कि तुम देखोगे क़यामत के दिन जिन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बोला उनके चेहरे सयाह काले होंगे। तो ये तो वही है ना। अब क्या जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा करे इस दुनिया में तो शरीयत सज़ा नहीं देगी? जहन्नम सिर्फ रंजीत सिंह के लिए है क्या? जहन्नम तो है उसके लिए, अगर दुनिया में सज़ा से बच गया। शरीयत के आने के बाद जो है ना, वो शरई अहकाम के तहत उसको सज़ा दी, शरई हुक्म लगा दिया। मिर्ज़ा साहब ने तो एक तो सूरह अल हाक़ा की जो है आयत उसके साथ जोड़कर उससे इस्तेंबात किया है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत के बाद ज़िंदगी थी उसको उन्होंने मयार ठहराया है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि 23 साल तक अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ इफ्तरा करके ज़िंदा रहता है तो इसका मतलब है कि उसको ताईद इलाही हासिल है। नहीं तो इस्तेमाल गलत है ना, ये गलत है इस्तेमाल। ओ भाई, गलत सही की तो बात ही नहीं है। बात ये हो रही है उन्होंने ये इस्तेमाल किया। तो करनी है, आपने तो गलत ही कहना है, आप तो उनको नहीं ना मानते, तो इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है। तो आप कहेंगे वो गलत है, लेकिन ये उन्होंने किया है, बस इतनी सी बात है। हाँ, बस वो गलत इस्तेमाल है, हम तो यही कहेंगे ना। हाँ, तो कहेंगे तो आप ना भी कहें तो हमें पता है आप यही समझते हैं। हाँ, बस ठीक है। हाँ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं, नई बात नहीं आप कर रहे। सवाल ये है, इस्तेमाल तो कोई भी बंदा करे, उसका ज़ाती फहम, उसकी ज़ाती समझ, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है ना। लेकिन अगर कुरान की नस मौजूद हो या नबी अलैहिस्सलाम की कोई सही हदीस ऐसी मौजूद हो जिसमें आपने फरमाया हो कि ये 23 साल एक मयार, जो 23 साल तक आपके सामने इल्हाम या वही पेश करे वो सच्चा है, वरना वो झूठा, इस तरह की तो कोई नस मौजूद ना कुरान में है ना हदीस में। एक इस्तेमाल है। आप भी वैसे नदानी की बात कर रहे हैं अमर नज़ीर साहब। मिर्ज़ा साहब ने तो अपने आप को इस चीज़ का मतलब मयार ठहराया कि मैं तो अल्लाह ताला से मुल्हम और मामूर मिन अल्लाह हूँ। तो उनकी जो बात है ना, वो उसकी ये इस तरह की सनद, किसी और ने अगर कोई तशरीह की है तो उसकी कोई बात उनके सामने नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब की जो दावा है उसके हिसाब से वो अब वो समझते हैं कि उनको जो इल्म दिया गया है उसके लिहाज से उन्होंने बात की। ज़ाहिर जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानेगा वो उनके इल्म को भी नहीं मानेगा, ना उनके फ़हम को मानेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के इस्तेमाल से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, जो मिर्ज़ा साहब को मानता है वो नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं? वो नहीं, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब के मानने वालों में लोग मौजूद हैं, और आप आज भी आपके सामने टिकटॉक पर मौजूद हैं जो कहते हैं कि हुज्जतें सिर्फ दो ही हैं, कुरान और हदीस। मिर्ज़ा साहब से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा साहब ने कई इस्तेंबात किए हैं, कई इज्तिहादात किए हैं जो मिर्ज़ा साहब के फौत होने के बाद गलत साबित हुए हैं। आपने भी माने कि वो गलत थे। इन दोनों बातों का जवाब दें। पहली बात का ये जवाब है कि जो कहते हैं मिर्ज़ा साहब हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो मिर्ज़ा साहब के पैरोकार नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि आपने कहा जी वो गलत साबित हुए, तो हमने तो उसको नहीं समझते कि हम गलत साबित हुए। कई ऐसी बातें हैं जो उनको इल्हाम से बताई गई जिनका ज़हूर अभी तक नहीं हुआ। हम ये कहते हैं, हम ये तो नहीं कहते वो गलत बातें थी। तो इसमें ये फ़र्क है ना, जो आप बयान दे रहे हैं, ज़ाहिर आप तो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते, आप उसको ऐसे पेश करते हैं ये वो पूरी नहीं हुई।
ہم کہتے ہیں کہ ان کے متعلق ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے، جب ظہور ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ نہیں جوان صاحب، میں وہ بات جو میں نے کہی ہے میں اس کا ثبوت دینے لگا ہوں۔ دیں، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب نے استنباط کیا، اجتہاد کیا اپنے مسلم موعود کے بارے میں۔ پہلے ایک بیٹے کو مسلم موعود قرار دیا، وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے بیٹے کو مسلم موعود قرار دیا، وہ فوت ہو گیا، پھر پوتے پر وہ لگایا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ کیا مرزا صاحب نے اس کو کہا کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ آئے تم فیصلہ کر لینا؟ نہیں، مرزا صاحب اس میں ناکام رہے صحیح استنباط کرنے میں اور صحیح فہم پیش کرنے میں۔ اپنے ہی الہام کا غلط فہم اور غلط استنباط وہ پیش کرتے رہے، ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا، ہر بار غلط ثابت ہوا۔ جی اول تو بات ہے کہ پسرے موت کی پیش گوئی تو پوری ہو چکی ہے، وہ عبدالغفار جنبہ صاحب اس کے مستاق ہیں، تو مرزا صاحب کی صداقت تو ہمارے سامنے روشن دلیل کی طرح سامنے کھڑی ہے، آفتاب کی طرح، تو وہ تو ان کی پوری ہو گئی۔ البتہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ہم بھی آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مرزا صاحب نے الہی جو کلام تھا اس میں ایک تصرف کیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے سچے نبی تھے، اس وجہ سے وہ تصرف بھی الہی مشیت کے تحت تھا، ایک ابتلاء کے طور پر جماعت کے لیے، کہ انہوں نے ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھ دیا اور پھر اسی تصور کو لے کر وہ اپنی ساری عمر چلتے رہے، یہاں تک کہ مرزا مبارک احمد صاحب، جس کو انہوں نے مطلب کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مستاق ہے، اور دلائل سے ثابت کیا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ بھی 7 سال کا وفات پا گیا۔ تو پھر مرزا صاحب کو الہام ہوا اس کے بعد انا نبشرک بغلام حلیم، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ آئندہ میری روحانی ضروریت میں پیدا ہوگا، لیکن مرزا صاحب نے اس کا کھل کے اظہار نہیں کیا۔ اس کے متعلق مرزا صاحب نے خود ہی بتایا ہوا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ملہم من اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اخفاء سے منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک ابتلاء ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، ظاہر ہے کہ جماعت کے لیے ایک ابتلاء تھا، اور وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر دیا، حالانکہ وہ اس کے بالکل بھی مستحق نہیں تھے۔ تو یہ اس کے پیچھے یہ بات تھی۔ آپ اس کو ایسے پیش کریں گے کہ یہ ان کا جھوٹا نکلا، وہ وہاں اس کو انہوں نے کہا وہ فوت ہو گیا، اس کو کہا وہ فوت ہو گیا، تو ہم بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کیونکہ یہ حقیقتیں ہیں، لیکن ہم ان کی جو تشریح اور طریقے سے کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی اپنی شان سے پوری ہو گئی، ہمارے سامنے موجود ہے وہ بندہ جو اس کا دعوے دار ہے۔ واہ، تو وہ دلائل ہے نا کہ دلائل سے چوہان صاحب ایک منٹ، حماد بھائی ایک منٹ ہے۔ چوہان صاحب، نہ تو میرا مرزا صاحب کی صداقت اور کذب پر سوال تھا، نہ پیش گوئی پر سوال تھا کہ پیش گوئی جھوٹی نکلی کہ سچی نکلی۔ میرے نزدیک جھوٹی نکلی، ساری جھوٹی نکلی ہیں، لیکن یہ میں بات کر نہیں رہا، میں صرف ایک ٹپیکل جو بات ہے اس پہ فوکس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے اجتہاد سے، اپنے استنباط سے ایک بات کہی، وہ غلط نکلی، پھر دوسری بات کہی، وہ بھی غلط نکلی، تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر تو ظاہر ہو گیا لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بس آپ کا خیال ہے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعض باتیں مامور من اللہ جو ہے اس کو اخفاء سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ یہ اخفاء ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا۔ اتنا پتہ ہے کہ مرزا صاحب ناکام رہے ہیں صحیح استنباط پیش کرنے میں، مطلب عبدالغفار جنبہ کو مسلم موعود بتانے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ پہلے وہ بشیر اول کو قرار دیا، پھر مبارک کو قرار دیا۔ میں تو صرف اسی ایک بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام جو بندہ ہے اس کا استنباط اور مرزا صاحب کا استنباط، اس میں فرق ہے۔ عام بندے کی استنباط سے، اجتہاد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بات ہماری ہو رہی تھی 23 سالہ معیار نبوت پر۔ آپ نے کہا کوئی ایک عام بندہ اجتہاد کرے تو اس سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مرزا صاحب کے اجتہاد سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا مرزا صاحب کا جب غلط ثابت ہوا ہے اجتہاد تو ان سے اختلاف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے علاوہ بھی کئی اجتہادات ہیں جو مرزا صاحب کے غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن اب اس کا جواب صرف یہ اسی بات پہ فوکس کر کے دیں کہ کیا مرزا صاحب اجتہاد کریں
वो गलत निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? बस ये जवाब दें। जी बिल्कुल निकल सकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने तो खुद ही कहा है इज्तिहाद के नबियों से गलती होती है इज्तिहाद में, और ये गलती होना ज़रूरी होता है इस वजह से कि बशर खुदा ना हो जाए। और इसके उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ही है जैसे एक हकीम हज़ारों का इलाज करता है, वो दुरुस्त तंदुरुस्त भी होते हैं, लेकिन 4-5 मर भी जाएं तो उससे उसकी हिकमत पे दाग नहीं आता। तो मिर्ज़ा साहब ने तो इसको कहा ही नहीं है कि मेरे इज्तिहाद पे नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला जो इज्तिहाद है उन्होंने कुरानी आयत से इस्तेंबात किया है, इसके तो गलत होने में तो कोई हमारे पास इस तरह कोई बात है नहीं है कि हम कहें ये गलत था, क्योंकि यही बात आप कर रहे हैं ना कि जी फ़लाँ फ़लाँ तो गलत निकला तो ये भी गलत निकला। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि चंद बातें उनमें इज्तिहाद में गलती हुई तो इसका मतलब है सारी बातें उनकी गलत हैं। आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि देखिए नहीं, यहाँ पिछले नहीं, मौत पे उनकी नहीं, ये गलती हुई। इसकी भी जी और वो इज्तिहाद तो उनका ज़ाहिर हो गया सबका था ये कि वो गलत था। मिर्ज़ा मुबारक अहमद के मतलब मैंने आपको बताया, उसके बाद इल्हाम उनको हुआ कि मतलब ये जो ज़की ग़ुलाम जो वादे थे अभी आना बाकी है। तो वो जिसको अक्ल है वो तो देख सकता है कि ये बात तो खुल गई सारी कि आइंदा कभी पैदा हुआ, क्योंकि वो नहीं पैदा हुआ था उस वक़्त मिर्ज़ा साहब की वफ़ात का वक्त था। मिर्जा साहब की वफात का वक्त था, मिर्जा साहब के पास टाइम नहीं था बताने के लिए। नहीं, मैं ये कैसी कह रहा बात कर हूँ रहे हैं? कि जब खुदा ताला ने फरमा दिया कि ये मुबश्शिर का बेगुलामिन हलीम, अभी मैं तुम्हें ये बशारत देता हूँ, यानी अभी पैदा नहीं हुआ, तो मिर्ज़ा साहब को पता चल गया, हमें भी पता चल गया, आपको नहीं पता चला। नहीं, मिर्जा साहब को पता चल गया होता तो मिर्जा साहब बता के ना जाते। तो बता भी दिया मैंने कि किस लिए नहीं बताया, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब खुदा ने इजाजत नहीं दी बताने की? जी बिल्कुल। पहले खुदा ने इजाजत दी, गलत बयान करने की इजाजत दी, सही बयान करने की इजाजत नहीं दी। नहीं, पहले तो खुदा ने बता दिया कि एक ज़की ग़ुलाम, एक वजी व पाक लड़का तुम्हें मिलेगा, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा। वजी व पाक लड़का मेहमान के तौर पर आएगा, उसमें तो सारी बात क्लियर थी। लेकिन मिर्ज़ा साहब को इत्तेहादी गलती उसमें लग गई, क्योंकि वो समझे कि जैसे कुरान मजीद में जब ज़की ग़ुलाम का वादा दिया जाता है हमेशा जिस्मानी औलाद होता है, तो गलती उनकी अगर वो लगी भी तो एक लिहाज से उनके उस लिहाज से सही थी, लेकिन इस दफ़ा वो उनका जिस्मानी नहीं था, ये था वो मसला। वो यही समझ रहे कि जिस्मानी होगा, जाहिर है, लेकिन नहीं था वो जिस्मानी। तो इसीलिए वो जिस्मानी चूँकि समझ बैठे थे, इस वजह से वो अपने जिस्मानी औलाद में ढूंढते रहे, लेकिन वो चूँकि था नहीं तो नहीं मिला। चौहान साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो इल्हाम की तशरीह मिर्जा साहब ने की, अपने ही इल्हाम की जो तशरीह की, वो गलत बयान करने पर अल्लाह ताला ने उनको नहीं रोका, लेकिन जब वो सही बयान करना चाहते थे अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया सही ना बयान करना। हाँ, जब यही मेरा मतलब। ये कौन सा ये कौन सा ये कौन सा खुदा है जो अपने नबी को कहता है कि जो गलत बात करनी है ना, गलत बयानी करो, झूठे साबित हो जो दुनिया के सामने। मुंशी इंदरमन मुरादाबादी, लेखराम वगैरह, वो क्या नाम था, पंडित लेखराम और ये दूसरे सारे जो मुशरक थे और अब्दुल्ला आतम वगैरह, इनको मिर्जा साहब ने पेश करना था सबूत। ये कहते थे मिर्जा साहब सबूत पेश करें, इनको सबूत पेश करना था। जो सबूत पेश करना चाहा उसमें तो मिर्जा साहब उनके सामने हो गए झूठे साबित। जहां सब सच्चा साबित होना था कि भाई मेरे बाद अब जंबा नाम का बंदा आएगा, वो सच है, वो बयान। ये कौन सा अल्लाह ताला है? ऐसे होता है, अल्लाह ताला ऐसे करता है अपने नबी को? आपके से इस नादानी की उम्मीद नहीं है, लेकिन सभी भी पेशगोई इस तरह खुल के नहीं बताई जाती मुहकम आयात की तरह कि उसमें मतलब नाम भी ले दिया जाए और सन भी बता दिया जाए। इस तरह अल्लाह ताला के तरीके नहीं है। तो इसी वजह से तो लोग गुमराह होते हैं, और इसी वजह से अंबिया का इनकार किया जाता है कि लोग अपने मयार बना के बैठ जाते हैं, हालांकि किसी को इजाज़त नहीं होती कि पेशगोई कि मैं अपने मयार बनाए, क्योंकि वो अल्लाह ताला का एक पोशीदा कलाम है
اور اس کے متعلق جب اس کا ظہور ہوگا تو ہم تبھی جانیں گے. لیکن لوگ پہلے سے ہی بنا لیتے ہیں کہ یہ وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یہی بات تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہودیوں نے انکار کیا. ان کے پاس بھی دلائل تھے کہ بھی یہ باتیں ہونی تھی، وہ تو ہوئی نہیں، تو مسیح کہاں سے آ گیا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ معیار اپنے بنا لیے تھے. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ دنیا کی بادشاہی ہوگی، حالانکہ وہ روحانی بادشاہت کی بات تھی. تو یہ اسی طرح کہ یہ آپ امام مہدی کے مطلب مسلمانوں نے اس طرح کے خیالات بنا لیے ہیں، خونی مہدی اور وہ فلاں کرے گا، پھونک مارے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں. آج صبح بھی آپ کہہ رہے تھے جی ہم لفظاً ان کو مانتے ہیں. تو آپ کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمثیلی کلام نہیں ہے بلکہ لفظ بہ لفظ ایسے پورا ٹھیک ہوگا. ہے، آپ ہماری عقل پہ ماتم کر لیں، اپنی عقل پہ آپ ہماری جلوس پہ نکال کریں، لیں، آپ کی پہ کر رکھیں. نہیں بے شک جلسہ منعقد کر لیں، اور جلسہ منعقد کر کے لوگوں کو کہیں کہ دیکھو ہمارا وہ خدا ہے جس نے مرزا صاحب کرتے ہوئے نہیں روکا. مرزا صاحب جھوٹے پڑ گئے ان کے سامنے، منشی اندرمن مراد آبادی لیکرم وغیرہ کے سامنے، کیونکہ مرزا صاحب نے نشان تو ان کو دکھانا تھا. ان کے سامنے ایک بچہ پیش کیا، مرزا صاحب نے کہا یہ ہے وہ مسلم مود، اب تگڑے ہو جاؤ. نشان ہونے لگا، وہ بیچارہ مر گیا 16 مہینے بعد. مرزا صاحب کی بات جھوٹی ثابت ہوئی. جی ان کے سامنے جھوٹا ہوتے ایک ہوئے دفعہ نہیں جھوٹی روکا. ثابت نہیں ہوئی، ایک دو بات تین کرنا- دفعہ جھوٹی ثابت ہوئی. شاباش، اللہ توڑا بھلا کرے. پھر مبارک احمد کی دفعہ پھر جھوٹی نکلی بات. ہاں جی مطلب وہ کون سا اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ جلوس نکالیں کہ وہ کون سا اللہ تعالیٰ ہے جس نے مرزا صاحب کو کیا نام ہے ان کا، عبدالغفار جنبا کے بارے میں مرزا صاحب کو پتا چل گیا کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا 1995 میں، وہ دے گا، وہ ہوگا مسلم. لیکن مرزا صاحب نے اس کا، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو روک دیا کہ اس کا نام نہ لینا. ہاں جی، لیکن جو غلط نام تھے وہ لینے سے نہیں روکا، اور کہا کہ غلط نام لو اور دنیا میں رسوا اصل ہوتے بات پھرو. ہے کہ سب سے زیادہ ماتم تو ان مرزائیوں کی عقل پہ کرنا ہے جنہوں نے مرزا صاحب کو مان کے پھر وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں. تو عقل پہ ماتم تو پہلے میں ان کی عقل پہ کروں، آپ کی تو بات باری آتی ہے، آپ نے تو ان کو مانا ہی نہیں مرزا صاحب. تو یہی مرزائی بھی یہی بات کر رہے ہیں نا آج. وہ کہہ رہے ہیں، اب مرزائی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا نا کہ اس میں دو وجودوں کی پیش گوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اجتہادی غلطی تھی. مرزا صاحب ایک ہی وجود کی پیش گوئی تھی، وہ مرزا محمود تھا. تو انہوں نے تو وہ سب کچھ ہی اس کے نظر کر دیا کہ وہ سارا کچھ ہی انہوں نے جھوٹ بنا دیا. تو اب مطلب کتنی اجتہادی غلطیاں مرزا صاحب کی، کتنی اجتہادی غلطیاں ان کے پیروکار خود مان رہے، آپ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں. جی بالکل، لیکن یہ بھی مان جائیں، جی بالکل. ہاں تو یہ بھی ان کی اجتہادی غلطی مان جائیں جو انہوں نے کہا ہے کہ 23 سال کے بعد اگر کوئی بندہ الہام پیش کرتا ہے، 23 سال تک کوئی پیش کرتا ہے تو وہ سچا ہے. یہ غلط ہے ان کا استنباط، صحیح نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح استنباط ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والا اس طرح موجہ کرتا رہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو خدا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے. اگر آپ کو 23 سال دکھا دیا جائے، ہاں مرزا صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ آپ کوئی ایسا بندہ جس نے خدا تعالیٰ کے اوپر افتراء کیا ہو اور پھر وہ اس طرح زندہ رہا ہو. ہاں مرزا صاحب اس دور میں اپنی کتابوں میں جو مرضی لکھتے رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ کو 23 سالہ بندہ دکھا دیا جائے کہ وہ 23 سال سے الہام اور وحیاں پیش کر رہا ہے، ہاں جی، اور ابھی تک اس کی گردن اللہ تعالیٰ نے نہیں کاٹی اور وہ قتل بھی نہیں ہوا، زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پھر آپ مرزا صاحب کے استنباط کو غلط مان لیں گے نا؟ نہیں، ہم پہلے اس کے اوپر غور کریں گے جو آپ مثال دیں گے. غور کر کے ہی اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ثابت ہو جائے گا تو ہاں پھر ہم غور کریں گے. بالکل، اگر ثابت ہو جائے کہ واقعتاً وہ دعوے دار ہے، ہے وہ جھوٹا دعوے دار، لیکن دعوے دار ہے کہ میرے سے اللہ کلام کرتا ہے، اور وہ اپنا الہام پیش بھی کر رہا ہے اپنے. زاہد قذاب کو کتنے، میں پوچھ رہا ہوں کتنا ٹائم ہوا ہے؟ زاہد قذاب کو تو آپ اس پیش گوئی کے تحت مان ہی نہیں سکتے. جو شخص مطلب ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کتاب جو ایک ہے یہ جھوٹی ہے، یہ کسی نے من گھڑت بنائی ہے. پھر آدمی کہے، میری بات سن لیں، پہلے آدمی کہے کہ یہ کتاب من گھڑت ہے، کسی نے خود ہی بنائی ہے، پھر کہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 332 پر میری سچائی کا ثبوت لکھا ہوا ہے. اس سے بڑی مضحکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟
यानी जिस किताब को वो झूठा कह रहा है उसी में से अपनी वो सच्चाई ढूंढ रहा है। ऐसे मिर्जा साहब भी करते रहे ना, इंजील तो रात को मुहर्रम में वो बदल आप करार जो मर्जी देते रहे। समझे, मेरी मिर्जा बात साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, इंजील और तौरात को मुहर्रम में बदल करार देते रहे, इंजील और तौरात की बात मानते रहे कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया है। कुरान ने तो इनकार किया है। तो मिर्जा साहब ने कहा है कि हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ईसाइयों के साथ इस्तेमाल जब किया तो फिर उनको इंजील के हवाले दिए। मतलब वो वैसे मिर्जा साहब मानते हैं कि सलीब पे नहीं चढ़ाया गया ईसा अलैहिस्सलाम को? नहीं, वैसे वो मानते हैं कि वो एक तारीखी वाकया जो था वो उसमें बयान किया गया। कुरान ने वो नहीं नहीं, बयान वो किया। सच्चा है कि झूठा? सलीब उनको दी गई कि नहीं दी गई? सलीब नहीं दी गई उनको, मतलब सलीब सलीब पे पे नहीं चढ़ाया चढ़ाया गया लेकिन सलीब पे मौत नहीं हुई। चढ़ाया गया हाँ भाई, जी। सलीब पे चढ़ाया गया, ये कहाँ लिखा हुआ है? इंजील में लिखा इंजील है। और तौरात में। हाँ इंजील जी। में वो मुहर्रम में बदल है। हाँ। मुसलमानों में से तो कोई नहीं मानता उनको सलीब पे चढ़ाया गया। मुसलमान तो मानते हैं, उनको छुआ भी नहीं किसी ने, हाँ टच भी नहीं किया किसी ने। तो ये मिर्जा साहब मुहर्रफ और मुबद्दल किताबों से अपनी सच्चाई पेश करते थे। तो ऐसे ही अगर जाहिद के साहब नहीं, देखे ना, मिर्जा ऐसे- साहब ने सच्चाई पेश की है कुरान की आयतों से, उसकी तायीद में जो बातें हैं वो उन्होंने पेश की हैं कि भी ये इस कुरान की आयत तरह में- ऐसी तारीखी किताब की तरह भी, उस तारीखी किताब में चौहान हम साहब- उसको खुदा का कलाम तो नहीं मानते, एक तारीखी किताब है, उसमें वाक़ियत बयान किया कुरान है। कुरान की किस आयत में लिखा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को नेज़े मारे गए, छांटे मारे गए? नेज़ों के नहीं भाई उन्होंने देखें जो मसीह हिंदुस्तान में उन्होंने लिखी, उनमें तारीख की किताबों के हवाले दिए हैं, इस तरह इंजील तारीख में ही है क्यों हवाले दिए ना, हैं? तारीख है ना। कुरान की फेवर तो ना फिर कहें। ओहो, मैं यही तो कह रहा हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात उन्होंने कुरान से साबित की है, फिर उसकी तायीद में जो तारीख़ी हवाले हैं वो पेश किए हैं। नहीं, मैं बात सिर्फ सलीब की कर रहा हूँ। इंजील से सलीब के उन्होंने, वाक़े में इंजील के वाक़या से उन्होंने मसीह की मौत साबित नहीं की, उन्होंने कुरान से साबित की है, लेकिन कुरान को तो उसकी ईसाई तायीद मानते में जो तारीख़ी वाले मिलते हैं वो उन्होंने पेश किए हैं। नहीं, कुरान मानते हैं, ईसाई मान लेंगे कुरान की बात। वो ईसाइयों के लिए नहीं, मसीह हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के लिए लिखी गई है ना। ईसाइयों को कैसे साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? नहीं, ईसाइयों को ऐसे साबित किया कि आपकी इंजील में ये गवाहियाँ मिलती हैं, उनको इस तरह साबित किया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो झूठी किताब है बकौल मिर्जा साहब की। ओ भाई, इंजील ईसाई तो सच्ची मानते हैं ना। ऐसे ही है, जायद कज़ाब इसलिए पेश करता है, वो कहता है तुम तो कुरान को सच्चा मानते हो ना, तो कुरान में हाँ, 332 तो कुरान को अगर सच्चा मानते हैं तो जो शख्स कुरान को सच्चा मानेगा उसके लिए ही कुरान की आयत वैलिड होगी ना। जो कुरान को झूठा मानेगा वो, उसके लिए कैसे वो वैलिड होगी? वो तो कुरान को भी झूठा कह रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी जुराइम का मुजरम कह रहा है, वो तो उनको भी नहीं मानता। और ये कि कुरान में जो देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने ये शर्त लगा दी, अल्लाह के साथ इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो नबूवत का इनाम मिलेगा। वो तो इसमें से बाहर निकल जाता है, तो उसको आप कैसे पेश कर सकते हैं? बात ये है कि दावा तो उसका यही है ना कि मेरे साथ खुदा कलाम करता है। अब वो खुदा को गालियां दे, रसूलुल्लाह को गालियां दे, कुरान को गालियां दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई इससे हिंदू तो कहे जल्दी कि उसकी मुझसे मौत- खुदा, अगर कोई हिंदू कहे मुझसे खुदा कलाम करता है, तो हम उसको सूरह अल-हाक़ा की आयत के मुताबिक परखेंगे। जो इस्तेमाल मिर्जा साहब ने किया इसके मुताबिक तो 23 साल से ऊपर किसी को नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से किया है इस्तेमाल, और कुरान की आयत से किया है। तो कुरान को जो नहीं मानता, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, वो कहता है मुझे खुदा ने इल्हाम किया है, तो भी हम उसको कुरान के ऊपर तो नहीं परखेंगे, क्योंकि वो तो उसको नहीं मानता, कुरान को तो झूठा कहता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक इस्तेमाल मिर्जा साहब ने किया है गैर मुस्लिमों के लिए। जब 23 साल मयार नबूवत है, ये किन के लिए है? मुसलमानों के लिए कि गैर मुस्लिमों के लिए? भाई उनके ये दलील लिए किनको जो दी कुरान जाती को है? मानने वाले हैं, ना ना उनके ना लिए ना ना ना। ना तो सूरह अल-हाक़ा ना तारक साहब ठहर जाओ, ठहर, फिर सोच के बताएं। 23 साल मयार नबूवत हाँ, किन को पेश किया जाता है सच्चाई के तौर पर? मुसलमानों के। ये गैर मुस्लिमों को हो चौहान साहब की हो गया दोनों, ये गैर मुस्लिमों को दिया जाता है सबूत। ये दलाइल नबूवा में से है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को 23 साल तक कैसे इजाजत दिए रखी कि वो अल्लाह ताला पर माज अल्लाह वो इस तरह करता तो और जिंदा गैर रहता। मुस्लिमों को आप कुरान की आयत से इस्तेमाल उनका करेंगे। एक मिनट
एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मयार है ये हमने निकाला तो कुरान से है, बल्कि आपकी जिंदगी से, नबी पाक की जिंदगी से निकाला है। हाँ जी। लेकिन हम पेश किसको करते हैं? गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को, यहूदियों को पेश करते हैं ना कि देखो अल्लाह ताला ने 23 साल तक पीरियड दिया। अगर माअज़ल्लाह नबी पाक अपने पास से घर के बातें बयान करते तो कैसे अल्लाह ताला 23 साल तक उनको देता मोहलत? हाँ ये गैर मुस्लिमों को हम देने के लिए। हाँ, हाँ, तो गैर मुस्लिम कहेगा कि जी हम तो इस कुरान की आयत को नहीं मानते। नहीं, आयत में कहीं नहीं ना हुआ 23 साल। आयत में तो 23 साल में यारी नबूवत तो में उन्होंने लिखा ही नहीं ऐसे हुआ। किया ना कि अगर ये रसूल कोई गलत बात मेरी तरफ मंसूब करता तो हम इसको दाने हाथ से पकड़ लेते। वो तो सूरह अल हाक्का की आयत को छोड़ दें एक मिनट के लिए। मिर्जा साहब ने छोड़े नबी कैसे, पाक की इस्तेमाल सीरत तो उसी से से किया उन्होंने। तो नहीं, मिर्जा साहब ने नबी पाक की सीरत से ये बात निकाली है। जो इस्तेमाल जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि नबी पाक ने 40 साल की उम्र में होकर ऐलान नबूवत किया, 63 साल तक आप जिंदा रहे, यानी 23 साल तक आप अल्लाह का कलाम लोगों को पेश करते रहे। कलाम इलाही उन पर नाजिल होता रहा। अगर माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर कोई नबी पाक ने अपने पास से घर के बातें बयान की होती तो 23 साल तक अल्लाह ताला उनको मोहलत ना देता। ये है असल पूरी बात। वो सूरह अल हक्का की आयत का इससे लेना देना कोई नहीं है। बात ये है कि सूरह हाका की से ही तो उन्होंने इस्तेमाल की, इसी की तफसीर में वही। नहीं, आप पढ़े जाते सूरह हाका की तफसीर, वहाँ पे उन्होंने इसकी तफसीर में ये बातें की। अच्छा, मैं ये जो सफ़ा आपने पढ़ा है 435, इसमें उन्होंने किया जिक्र उसका सूरह अल हक्का का? नहीं। पिछला तो फिर पिछला सफ़ा खोलो हम। नहीं, इसमें नहीं किया उन्होंने, लेकिन तो फिर ये उन्होंने नबी पाक की सीरत से निकाले हैं 23 साल दौरे नबूवत। ये नबी पाक की जिंदगी से, हयात तैयबा से बात किया है कि 23 साल तक ये पीरियड रहा है उस आयत से। और एक इस्तेमाल ये है कि मतलब जिसके लिए किसी आयत की ज़रूरत नहीं है, आदमी उसके मतलब कह सकता है कि 23 साल मतलब अल्लाह ताला इतनी लंबी मोहलत किसी को नहीं देता जब वो कोई झूठ उसके ऊपर बांध रहा है। लेकिन एक शख्स जो कुरान को ही नहीं मानता, रसूल को ही नहीं मानता, तो उसको तो हम नहीं ना कह सकते वो मुसलमान ही नहीं है। अगर कोई हिंदू ये काम कर रहा है जो खुदा की तरफ से वो है तो मतलब ये एक अकली दलील है, ये नकली दलील नहीं है। ये कोई नकल शुदा नस्से कुरानी नहीं है जो हम पेश कर, ये एक अकली दलील हम पेश करते हैं कि भाई देखिए नबी पाक 23 साल तक कलाम इलाही सुनाते रहे। ये उनकी सीरत से हम बात अखज़ करते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने करने की कोशिश की है और अपने लिए इसको सदाकत की दलील बनाया है कि मेरे सच्चे होने की दलील ये है कि नबी पाक भी 23 साल तक लोगों को सुनाते रहे। और देखें यहाँ भी 23 साल हो गए मुझे, अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ा नहीं है। तो ये बातें जितनी उन्होंने की है वो नबी पाक के ये अक्ल के मुताबिक करने की कोशिश की है, ना कि कोई नस्से कती है। ये इस्तेंबात है जिसके बारे में आपको हमाद भाई ने कहा कि ये इस्तेंबात गलत है और उसके गलत होने की ये वजह है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पर कई लोग हैं 23 साल से ज्यादा तक काफी अब बात कर ली, रिपीटिशन ही हो रही है। ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने। हाँ ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी आंखों के सामने है कि 23 साल से ज्यादा लोग ऐलान करते हैं और वो इफ्तरा करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। ये कोई मायार ना कुरान ने पेश किया है, ना नबी पाक के फरमान में है, ना ही किसी सहाबी का कौल है। मिर्जा साहब का जो इस्तेंबात है वो तो उसी वक्त ढेर हो जाएगा जब बंदा आपके सामने 23 साल खड़ा होकर कहेगा कि मैं तो जन्नत जाता हूँ। ज़ैद कज़ाब कहता है मैं जन्नत में जाता हूँ, रब के साथ खाना खाता हूँ, मैं जन्नत की सैरें करके आता हूँ, मैं फला से मिल के आया हूँ, मिर्जा साहब से मिल के आया हूँ। इसके मतलब जब तहकीक की थी तो मुझे ज़ाहिद कज़ाब का कोई भी ऐसा इल्हाम नहीं उसने पेश किया कि खुदा ताला ने ये अल्फाज मुझे कहे हैं। मैंने वैसे मुझे नहीं कोई मिला, कोई आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था ये, क्योंकि ये एतराज़ किया था उन लोगों ने। ये जो एक सैयद मौलूद साहब जो थे ना, जंबा साहब के पैरोकार थे, वो उसके साथ जाके मिल गए थे, तो वो भी यही दलील देते थे। तो उस वक़्त मैंने तहकीक की थी, अब तकरीबन हो गए 3-4 साल,
तो प्रोग्राम भी मैंने यूट्यूब पे किया था। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा क्या था नाम था कि जम्बा साहब के उस पैरोकार का? उस पैरोकार का सैयद क्या नाम? मौलूद शाह, सैयद मौलूद शाह, अच्छा अच्छा। वो ये जाहिद का पैरोकार बन गया था। तो अभी है, अभी मुझे मेल वगैरह करता रहता है, मैसेज करता रहता है। तो वो सैयद मौलूद वो है जिसने ये कहा था कि मैं खाना काबा में जब गया था तो वहाँ मैंने ख्वाब में देखा था, यानी मक्का शरीफ में, कि खाना काबा के ऊपर हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा का नाम लिखा मुझे नज़र आया था जब वो उनके मुरीद था इनका अब्दुल गफ़ार जंबा साहब। तो उसने बाद में जाहिद कज़ाब की बैत कर ली इनको छोड़ के, और फिर वो हमें भी बड़ी तबलीग करता था कि वो जंबा साहब भी ठीक हैं लेकिन असल जो मतलब मसीह हैं वो जाहिद कज़ाब साहब हैं। तो उस वक़्त मैंने तहकीक की थी, मैंने उसके भी पूछा था कि कोई जाहिद कज़ाब साहब ने कोई अल्लाह ताला से इल्हाम पेश किया है कभी? ये तो उन्होंने लिखा कि मैं वहाँ पे गया, चाय पी, डांस किया, अल्लाह मियाँ ये नारे लगाता रहा मेरे पीछे, मुझे सजदा किया मेरे खुदा ने, ये बातें तो वो करता रहा है, काफ़ी भी उसके साथ। तो ये उसने कभी इल्हाम पेश किया है कि खुदा ताला की तरफ से मुझे ये इन अल्फाज में इल्हाम हुआ? तो उस वक्त तक ना उन्होंने मुझे ऐसा कोई भेजा तारिक ना साहब मुझे कोई बताएं, जन्नत में क्या काफी का भी जिक्र है कुरान में? आपने काफी का नाम लिया ना? चलते होते फजूल कोई है ना जो मर्जी बयान करे, यार जाहिद कज़ाब ने ये बातें की हैं। जो मर्जी कहता रहे। बात आप ये जो है मर्जी कहते रहे। कि अलीम बाजवा का ना बंदा है राब्ते में, हाँ। अभी आ जाते हैं अलीम बाजवा साहब, तो उनको बुला के ना तो आपकी बात करवाते हैं। हो सकता है इल्हाम भी कोई हो, तहरीरी या तकरीरी होना तो चाहिए ठीक है, सूली वो तौर कोई पर। है तो मुझे कोई पेश कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो तहकीक की थी उस वक्त उनके पैरोकारों से भी पूछा था, उनके साथ मेरी बड़ी डिस्कशन भी हुई है। जाहिद कज़ाब के साथ भी मेरी व्हाट्सएप पे डिस्कशन हुई है। उसने कहा, पहले तो कहता रहा मेरे साथ इतने इतने बंदे आएंगे वो भी मैं रखूँगा। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, आप जितने मर्जी लेके आएँ। फिर वो लेके आए, फिर उसने कहा मैंने तारिक चौहान से बात ही नहीं करनी। तो वो तो फिर ये अमीर फैसल का जो था प्योर डिस्कशन, उसमें मैंने उसको कहा था, तैयार भी हुआ, और पहले ख़ुद ही उसने बात करनी, फिर कह रहे मेरे साथ बंदे भी होंगे। मैं कहा हाँ ठीक है, जो मर्ज़ी रख लो तुम, मुझे बंदे रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में ये भाग गया, क्योंकि मैंने शुरू उससे किया था कि जो खुदा का तसव्वुर पेश करता है ना, वो ही इतना मज़ा का खेद है कि उसके मुतल्लिक यानी उसकी कोई दलील नहीं बनती, इतने तजादात हैं उसके इस तसव्वुर में। तो वो इसी से ही वो भाग गया था। चौहान साहब, अमन नज़ीर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ दोनों से, आप दोनों से। सवाल मेरा ये है कि मिर्ज़ा साहब की जो नबूवत का उन्होंने क्लेम किया है, या जो भी उनके क्लेम है नबूवत का या इमाम मेहदी का या मुस्ले का, आया उन्होंने उसका जो ऑब्जेक्टिव है उनको उसका हसूल हो गया, या स्टिल अभी उनकी ज़िंदगी में जो मामलात उनको कुछ ऐसे भी रह गए हैं जो करना चाहते थे और उनको उनका हसूल ना हुआ हो? नहीं देखिए, मिर्ज़ा साहब ने तो खुद लिखा हुआ है कि मेंशन हो किसी जगह पे कि ये जो है मैं करना चाहता था लेकिन मेरी ज़िंदगी मुझे इतनी मोहलत नहीं दे रही, या समथिंग लाइक कि मुकम्मल ना हुआ हो जिस काम के लिए वो आए थे। काम क्या था उनका आने का, और अगर कोई काम पेंडिंग रह गए हैं तो वो, ये मेरा क्वेश्चन है जी। शुक्रिया। नहीं, मैं इसका जवाब आपको ये देता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखा हुआ है कि जो खुदा ताला का मुरसल होता है ना, वो तुख़म रेज़ी के लिए आता है, और ये नहीं होता कि जो भी काम उसने करने वो सारे उसमें पूरे हो जाते हैं, बल्कि वो एक लंबा सिलसिला होता है जो बाद में फिर वो काम होते रहते हैं। और उन्होंने ख़ुद लिखा है कि वो पेशगोइयाँ जो उन्होंने की हैं, अगर खुदा ताला उनके किसी कामिल मुतबे के लिए ज़रिया पूरी कर दे तो वो ऐसा ही है कि जैसे वो उनके हाथ से हुई। तो ये बात नहीं है कि वो उन्होंने कह दिया कि मैंने जो काम करना था सारा काम करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो ये पेशगोइयाँ पूरी होती रहती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ, कुरान की पेशगोइयाँ, वो पूरी होती रहती हैं अपने वक्त के ऊपर।
आमिर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? शायद नहीं है। नहीं, मैं ना मोटरवे के बिल्कुल वो हूँ इंग्रेसों पे। बात ये है कि इसके बारे में तो वुल्फ मौलाना सनाउल अमृतसरी एक शेर लिखा करते थे कि काम तेरा कोई भी पूरा ना हुआ, इस तरह का वो दूसरा मिसरा था। मिर्जा साहब का कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम वो जिस काम का वो दावा करते थे किसी को भी नहीं कर सके। ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ दयानतदारी से। पेशगोइयाँ तो गई ना जहन्नम में, पेशगोइयाँ को एक साइड पे छोड़ो। मिर्जा साहब कहते थे अगर मैंने ईसा परस्ती का बुत तोड़ नहीं दिया, ईसा परस्ती का बुत मैंने अगर तोड़ नहीं दिया तो मैं झूठा हूं। और वो काम जो जिसके लिए मसीह ने आना था वो मैं कर ना सका। कौन सा ईसा परस्ती का बुत तोड़ा मिर्जा साहब? ईसाई पहले से भी ज्यादा हो गए उनके दौर में। बदरजाए आसन वो तोड़ चुके हैं, मिर्जाइयत ईसाइयत की जड़ तोड़ चुके वैसे हैं। तो महमदी बेगम से शादी भी हो ही चुकी है। आमिर साहब और चौहान साहब, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये रूहानी खजाइन के जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 434 और अरबाइन नंबर 4, इसके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि यानी अगर ये नबी झूठा है तो अपने झूठ से हलाक हो जाएगा, और अगर सच्चा है तो ज़रूर है कि कुछ अजाब तुम भी चखो, क्योंकि ज़्यादती करने वाले खुद इफ्तरा करें, ख्वाह तकज़ीब करें, खुदा से मदद नहीं पाएंगे। अब देखो उससे ज़्यादा तसरीह क्या होती है कि खुदा ताला कुरान शरीफ में बार बार फरमा रहा है कि मुफ्तरी इस दुनिया में हलाक होगा, बल्कि खुदा के सच्चे नबियों और मामूरीन के लिए सबसे पहली यही दलील है कि वो अपने काम की तकमील करके मरते हैं और उनको शाअत दीन के लिए मोहलत दी जाती है। और इंसान की इस मुख्तसर ज़िंदगी में सबसे बड़ी मोहलत 23 बरस है। ये बात है जी। जी हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आमिर साहब तो कह रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ। तो आमिर साहब से हमने पूछना पूरा हुआ कि नहीं? भी कहा कि नहीं हुआ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। हम तो कह रहे हैं पूरा हो गया, आमिर साहब ने तो ना बताना पूरा हुआ कि नहीं, वो तो अच्छा, मुखालिफ आप कह रहे हैं ठीक हो गया जी, दोनों तरफ से राय आ गई है, ठीक हो है। गया। जी थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। बस मेरा बहुत यही बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। नहीं, आप ग्लोबल साहब, आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। ईसा परस्ती का बुत तोड़ दिया गया। आमिर साहब, मैं एक बात सामने रखना चाहता था सुनने वालों के लिए भी, और आपसे भी और चौहान साहब से भी मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैंने अपना आंसर निकाल लिया। हाँ बाकी जी, आपने निकाल लिया। ये भी सोचें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद का क़याम करने आए थे वो उन्होंने पूरा कर लिया। मैं तो कहता हूँ कि जब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत आ गई थी तो हाँ, अल्लाह ने कह दिया पूरा हो अल्लाह गया, ने कह दिया इसलिए पूरा, बस उस पे आपने कहा मुझे पूरा हो शक गया। सारा मुसलमान कब्र परस्ती करें, आप कहते नहीं तौहीद का तो डंका बज गया। ये आपकी है वो देखिए, आप एक्सप्लेनेशन। अपना नुक्ता एतराज रख सकते हैं। मैंने जी आपको जी कुरान नहीं, बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम इसी ने तरह आप भी नबी नुक्ता एतराज अलैहिस्सलाम रख ने सकते कब हैं। ये 90% मुसलमान कब्र परस्त बन चुके हैं। तो आप कहें जी तौहीद तो टाइम का हो गया। आवाज़ गुम हो गई थी अमर भाई। ये तो नबी पाक ने खबर दी थी कि ऐसा होगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं, वो तो जाहिर, वो मिर्जा साहब ने तो खबर दी थी। अपने बारे में ये दावा कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने भी खबर दी थी कि मेरा कुंबा अपने खबासों की तरफ वापस लौट जाएगा, फिर खुदा अपना अमर नाजिल करेगा। तो मिर्जा साहब ने मेरा भी भी खबर एक दी सवाल है। होगा तारिक साहब चौहान साहब, आमिर साहब, शुक्रिया जी, थैंक यू। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम तो उनकी